سائم، تم سے مجھے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ شاہزین اسناد اور اس کے والد کی طرف ترچھی نگاہ، تلخ نگاہ سے دیکھتے ہوئے سائم سے مخاطب ہوا، جبکہ ماروش کی چیخ و پکار کو شاہزین سرے سے نظر انداز کر گیا۔ کول ڈاؤن سسٹر، آپ ابھی محض صدمے سے گزریں گی اور مجھے دلی طور پر ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، مگر یہ شخص آپ کے قابل ہرگز نہیں۔ شاہزین بولتا جا رہا تھا اور حیدر صاحب کا جسم جیسے مفروط ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ انہیں تو پہلے سے ہی یہ لوگ دھوکے باز اور فریبی لگ رہے تھے۔ کیا بکواس کیے جا رہے ہو تم انسپیکٹر، پولیس والے ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کسی کو بھی مجرم گردان دو گے؟ میرا بیٹا اسناد کیا برا کر رہا ہے؟ ان کی بیٹی نے میرے بیٹے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی۔ میرا بیٹا چاہتا تو اسے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک سکتا تھا، مگر اس نے یہ گھٹیا پن نہیں کیا، بلکہ اس گھر کی بیٹی کو اپنی عزت بنانے کی غرض سے ہم نکاح کر رہے ہیں اور آپ ہے کہ بکواس کیے جا رہے ہیں۔ وقار صاحب طیش میں آ کے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے ماروش کو اس کی اوقات بتا گئے۔ وقار صاحب، آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ میری بہن آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے؟ آپ کا لخت جگر بھی تو میری بہن سے محبت کا دعوے دار ہے نا؟ آنکھ تو دونوں طرف برابر کی لگی ہوئی ہے۔ اب کی بات صاحب غصے سے بولا، تمہارا دماغ خراب ہے جو تم اس مکار انسان کی مکاری کو محبت کا نام دے رہے ہو؟ یہ دونوں مفروف مجرم ہیں جو پولیس کو بڑی دیر سے مطلوب تھے، اور تم ان عادی مجرموں سے اپنی اکلوتی بہن کا بیارہ چاہ رہے ہو؟ انسپیکٹر شاہزین سائم پر غصے سے جھنگاڑتے وہ بولا، ماروش، آپ جانتی ہو میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا اس انسپیکٹر کو اور اس کے ساتھ موجود اس لڑکے کو جو اس وقت ہمارے نکاح میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ سب محبتوں کے دشمن ہیں۔ اسناد ماروش کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، جو کب سے کھڑی سب بھونکوں کی طرح تکے جا رہی تھی۔ بابا جان، یہ لڑکا ہمارا یونیورسٹی فیلو تھا، اس نے پہلے سرینا کی زندگی تباہ کی ہے، اسے سبز باغ دکھا کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، اور اب یہ اسناد کو راستے سے ہٹانے کے لیے من گھڑت کہانی خود سے گڑھ رہا ہے۔ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ بابا جان، ان کی باتوں کا یقین نہیں کرنا، یہ انسپیکٹر اس دوغلے انسان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ماروش احسن خان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے اسے تنبیہ کرتے ہوئے سب کو اس کی حقیقت بتا رہی تھی، جبکہ ماروش کی باتوں سے اسناد اور وقار صاحب کو تھوڑا حوصلہ ملا تھا۔ میں نے کہا نا سسٹر، آپ بھی ابھی معصوم ہیں، آپ کو محبت کا صدمہ لگا ہوا ہے، آپ کے عقل پر عشق کی پٹی بندھی ہے، ہم بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کو۔ یہ تو بھلا ہوا احسن میاں کا جو مجھے مطلع کر دیا، ورنہ آپ تو ڈوب جاتی ہمیشہ کے لیے پیاری بہنا۔ شاہزین ماروش کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، بس کر دے انسپیکٹر، مت بنائے میرا تماشا، میں نے بہت چاہت سے لوگ بلائے ہیں، آج میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، آپ خدا کے لیے شخص کی باتوں میں آ کر میری زندگی تباہ مت کریں۔ ماروش روحان سی ہوتی تقریباً شاہزین کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ شاہزین، کون ہے یہ لڑکا اور تم دونوں کس سازش کے تحت آئے ہو؟ تم سے تو یار میرا برسوں کا یارانہ تھا، تم سے مجھے یہ امید نہ تھی کہ تم ایک اجنبی کے کہنے پہ اس طرح کرو گے۔ اور تم کون ہو؟ تمہیں تو ثقلین زندہ درگور کر دے گا۔ تم نے کیا سوچ کر ثقلین سے دوستی کی کہ تم دوبارہ سے سرینا کی زندگی تباہ کر دو گے؟ ارے تمہیں چین نہ آیا ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر کے جو اب میری بہن کا گھر برباد کرنے آئے ہو؟ سائم احسن اور شاہزین دونوں کو مخاطب کر کے کرب سے بولتے ہوئے رونے کو تھا، حیدر صاحب، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ان پولیس والوں پہ اعتبار نہ کریں، یہ تو ہر وقت قانون کو ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں۔ وقار صاحب شاہزین کو فاتحانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے حقارت بھرے لہجے میں بولے، آپ نے میرے عہدے کی توہین کی ہے وقار صاحب، اس وقت یہ اہم نہیں کہ احسن خان کون ہے اور ماروش یا سرینا کے ماضی سے کوئی تعلق ہے، اہم یہ کہ مستقبل تم جیسے واہیات انسان سے جڑنے جا رہا ہے، اور جو میں اپنے اس بے وقوف انسان کو کرنے نہیں دوں گا۔ شاہزین احسن کو تبکی دیتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا، ارد گرد سب لوگ تماشائی بنائے دیکھ رہے تھے۔ ماروش کی دوستیں جو بن سنور کے مہنگے شان و شوکت والے ڈیزائنر کے ڈریس پہن کر آئی ہوئی تھی، اب وہ خوف کے مارے پسینے صاف کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آنسا اور شاہ خالہ نادیہ بیگم کو سنبھالے ہوئے تھی، پری بھابھی بھی خوف اور ذلت کے ڈر سے کپکپا رہی تھی۔ ماروش کا صدمے سے برا حال تھا، اس کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا اس کا عثمان خان کو کارڈ بھیجنا اس قدر بھاری پڑ سکتا ہے۔ نادیہ بیگم کپکپاتے لرزتے قدموں کے ساتھ احسن خان کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی، دیکھو بیٹا، یہ زندگی تباہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، تم جس بھی مقصد سے آئے ہو لوٹ جاؤ، اور شاہزین، تم سے تو مجھے طرفداری کی توقع تھی، مگر تم بھی تو غدار نکلو، میرے ہی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نادیہ بیگم روتے ہوئے بولی، کیونکہ شاہزین کا تو آنا جانا تھا، وہ تو ان کے گھر کا بچہ تھا، آپ نکاح شروع کروائے مولوی صاحب، بہت تماشا بن گیا میری بیٹی کا۔ نادیہ بیگم ماروش کو اسناد کے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں نکاح کی دعوت دی تو تم نہیں آئے شاہزین، اس بہروپیے کے ساتھ تم میری بہن کا تماشا بنانے
दौड़े चले आए। बहुत मायूस किया तुमने शाहज़ैन, साइम तलखी से झंगाड़ते हुए बोला। निकाह पढ़ा है मौलवी साहब, ये इंस्पेक्टर अपना मुंह बंद कभी नहीं करेगा। वकार साहब तकब्बुर से बोले, जिसे मजाक उड़ा रहे, कि देखो तुम सच्चे हो के भी अपनी बात का यकीन नहीं करवा पा रहे हो। मारविश की इज्जत का जनाजा जो मोहल्ले वालों के सामने निकलना था वो तो निकल चुका था। अपनी इज्जत और अपना वकार बचाने के लिए मारविश ने लाखों रुपए महज एक निकाह के फंक्शन में लगा दिए थे ताकि इस पर कोई उंगली ना उठा सके। मारविश इस वक्त जिल्लत की गहरी दलदल में खुद को गिरता हुआ महसूस कर रही थी। काश वो इस मनहूस इंसान को मुतल्ला ही ना करती। जिंदगी में पहली बार मारविश को अशमरान से इस कदर नफरत हुई थी। मौलवी साहब अलर्ट हुए कि निकाह के पेपर असनाद के हाथ में थमा तो इससे हाक मैर का पूछने लगे, जबकि एहसन को लगा इसकी मेहनत बेकार गई और यहाँ आके से मालूम पड़ा सेकलर अब इस घर में नहीं रहता। घो घर वालों के साथ कशीदगी की वजह से वह घर छोड़ चुका था। रुकिए ना साहब, आशियन जानती है आपके ने कहा कि इसने कहा के बारे में। शाहजैन मुसलसल मोबाइल पर देखते हुए डरमाई अंदाज में बोला। आशिन के नाम पर असनाद का दिल ही बंद हो गया था। आपका कौन आशिन, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं जानता, इनको भेजे हैदर साहब, ये जानबूझकर नत नए ड्रामे लगा रहे हैं। आपकी बार असनाद की आवाज़ में वाजे कब कपहाट थी जो सारे नफूस ने महसूस की। अरे वाह, भूल गए आप, आपकी मनकुआ है आशिन। अरे पुलिस वाले हैं हम, अगर घी टेढ़ी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करना हम जानते हैं। हैदर साहब और साहब, मेरी बात का आपको यकीन नहीं, सिर्फ 5 मिनट सब्र करें, इसके बाद आपका जो दिल चाहे वो करे। ये असनाद और वकार साहब दुनिया भर के चालबाज फरेबी बकार इंसान है। मैं मारविश का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, मगर आप सब मिलकर इसे अंधे कुएं में गिरा रहे हैं तो मुझे इनकी असलियत आपको दिखानी पड़ेगी। असद आफरीदी का निकाह काफ़ी वक्त से अपनी फुफुजात आशिन के साथ हो चुका है। वकार साहब एक अयाश पर इंतहा दर्जे के लोफर इंसान हैं। फ्रॉड के केस में कितनी बार जेल की हवा खा चुके हैं। अभी भी बहुत सारी कंपनियों से बिजनेस के नाम से पैसे खा के मफरूर है। वकार साहब के पास रहने को घर नहीं है, ये अपने साले के दिए गए घर में रहते हैं। इन दोनों बाप बेटों ने अपना घर तक गिरवी रखकर लड़कियों और मुजरों पे पैसा लुटाया है। ये दोनों बाप बेटा इंतहाई नीच और करप्ट इंसान हैं। शाहजीन इनकी असलियत खोलते हुए निहायत करख्ती से बोला, जबकि सारे लोग कानों को हाथ लगा रहे थे कि मारविश का किस घटिया और नीच इंसान से पाला पड़ा है। सब लोग मारविश की वजह से नादिया बेगम और हैदर साहब को लान तान कर रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी को लगाम भी न डाली कि वो एक वाहियात इंसान से रिश्ता जोड़ने जा रही थी। मारविश को अपनी सबकी महसूस हो रही थी। इस्नात, आप बताओ ना, ये झूठ बोल रहा है, और सब लोगों को बताओ कि तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी ज़ात में छुपा गुरूर, तुम्हारी पर्सनैलिटी कहीं भी शाहजैन भाई की की गई बातों से मैच नहीं करती। बताओ सबके तुम बहुत अच्छे ख़ानदान से हो। मारविश का सारा बदन दुख और ज़िल्लत और तज़लील के बाद अर्तशाद में था। मारविश लर्ज़ते लहजे में इस्नात को कँपकँपाते हुए बोली, शाहजैन तुम कैसे कह सकते हो ये सब? अब की बार हैदर साहब धाड़े, ये क्या तमाशा लगा रखा है मेरी इज्जत का सपने? मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ। 4 साल पहले भी मेरी मासूम बेटी पे तहमत लगा के मुझे ज़माने भर में तस्लील किया गया, और अब मेरी दूसरी बेटी पे कीचड़ उछाला जा रहा है। मैं इतने गम नहीं सह पाऊंगा। खुदा के लिए शाहजैन बेटा, तुम ही मेरी उम्र का लिहाज कर लो। हैदर साहब रोते हुए शाहजैन के पाँव पड़ने लगे, जिन्हें शाहजैन और हसन ने मिलकर थाम लिया, जो तकरीबन पाँव में गिरने वाले थे। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कहने को तो मैं कह सकता हूँ ना कि तुम भी इंस्पेक्टर के नाम पर एक भेड़िए हो। वकार साहब गुस्से से शाहजैन पे चिल्लाते हुए बोले, जबकि एहसन खान बस हंसा ये सब देखे जा रहा था, क्योंकि वो अब कर भी कुछ नहीं सकता था। शाहजैन के नंबर पर एक टैक्स आया तो इसने एक लड़के को बाहर भेजा कि एक बुजुर्ग गाड़ी में अभी आए हैं, इनको लेकर आओ। लॉन में खूबसूरत फूलों की सजावट इस कदर भली लग रही थी कि पूरे लॉन में परफ्यूम की छिड़काव से पूरा घर महक रहा था। हर चीज़ उम्दा थी, मगर तकदीर साथ नहीं दे रही थी। असनाद और वकार साहब के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। इतने में एक बारूप और पुरनूर चेहरे के साथ एक बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता से चलते हुए अंदर आए, जिनको देखकर वकार साहब और असनाद की सिट्टी ही घूम गई, जबकि वो उनको देखकर भी इन अनदेखा कर गए और सीधा शाहजहान के पास आकर खड़े हो गए। हर शख्स परेशान था, आखिर ये बुजुर्ग कौन है और उनका यहाँ आने का मकसद क्या है? मारविश और नादिया बेगम का दिल बिलियों उछल रहा था कि खुदा ना खास्ता ये सच ही ना हो। बरखुदार, आज मुझे भी पहचानने से इनकार कर दो। घबराओ मत, तुम लोग मेरी उम्मीदों पे पूरे उतरे हो, बल्कि मुझे तुम दोनों से इससे भी घटियापन की उम्मीद थी। वो बुजुर्ग असनाद और वकार साहब को देखकर धीमे मध्यम मगर नफरत से भरपूर लहजे में बोले। वकार साहब ने तो सर ही झुका लिया था, जबकि असनाद को अपनी दुनिया अंधेरी होती हुई दिखाई दे रही थी।
پھوپھا جان وہ دراصل میں اسناد کچھ بولتا پہلے انہوں نے چپ کروا دیا۔ مجھے پھوپھا مت کہو، آپ سب پریشان ہیں نا کہ یہ گھٹیا لوگ بھی میرے رشتہ دار ہیں۔ ہاں یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں۔ اسناد آفریدی کے نکاح میں ہے میری بیٹی ارشین، میرے جگر کا ٹکڑا، نہ جانے اس واحد انسان سے کیسے دل لگا بیٹھی، مگر میں ان دونوں باپ بیٹوں کی حقیقت سے انجان نہیں تھا۔ بھکاریوں کی طرح وقار صاحب نے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ بھیک میں مانگا تھا، کیونکہ ان کو توقع تھی کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ان کے بیٹے کو بہت سارے زیورات اور پیسوں سے نوازوں گا، مگر افسوس کہ میں نے اپنی بیٹی کی ہر ضرورت پوری کی، لیکن ان دونوں باپ بیٹوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی، جس کی وجہ سے وقار مجھ سے بدظن ہو گیا۔ کچھ عرصہ پہلے بہلا پھسلا کر میری بیٹی سے کچھ زیورات ان باپ بیٹوں نے ہتھیا لیے تھے، جس کی رپورٹ میں نے خود مخفی ہو رکھتے ہوئے شاہزین کے پولیس اسٹیشن میں کروائی تھی، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میری بیٹی کو بلیک میل کرتا تھا کہ تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تم سے نکاح توڑ دوں گا، تو میں نے اس سلسلے میں شاہزین سے رابطہ کیا تاکہ اس کیس میں ہراساں کرنے پر کوئی دفعہ لگتی ہے یا کوئی کیس ہوتا ہے تو میری شاہزین سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے، اور آج جب مجھے بلایا تو مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی بلکہ خود پہ افسوس ہوا کہ سوا میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ حیدر صاحب تو ہلنے کے قابل بھی نہیں تھے، اتنی ذلت اتنی ضلالت تو انہیں کبھی زندگی بھر محسوس نہیں ہوئی۔ محلے والے لوگ تھو تھو کر رہے تھے کہ کس طرح کے لوگوں سے ماروش کو وابستہ کرنا چاہ رہے تھے۔ نادر بیگم تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ان کا دل ساکت ہوتا محسوس ہو رہا تھا، دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ ماروش بے یقینی کی حالت میں پاس بیٹھے اسناد کو بیٹے کو تک رہی تھی، جو مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حیدر صاحب کپکپاتے ہوئے انکل کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ میرا نام جلال آفریدی ہے حیدر صاحب، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے، آپ بھی اپنی بیٹی کے ہاتھوں مجبور تھے، لیکن اسناد کی اصلیت سے نہ انجان تھے، جبکہ میں تو جانتا بھی تھا مگر اپنی بیٹی کے آگے بے بس تھا۔ وہ میری بات کا یقین نہیں کرتی تھی، مگر آج شاہزین کے کیمرے سے بنائی گئی ویڈیو اسے ضرور یقین دلائے گی۔ جلال صاحب نے شاہزین کے کالر میں چھپے کیمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیمرے کے نام پہ اسناد کو ایک دم جھٹکا لگا۔ وہ اپنی عزت وقار سب کچھ کھو سکتا تھا مگر آرشین نہیں، کیونکہ اس نے سچ میں آرشین سے محبت کی تھی بغیر کسی مطلب کے۔ یہ تو باپ کے کہنے پر اس سے پیسے ہتھیا لیا کرتا تھا۔ وہ ایک دم دوڑتا ہوا جلال آفریدی صاحب کے قدموں میں گر گیا۔ پھوپھا جان سب کچھ کر رہے، میں اعتراف جرم کرتا ہوں، میں غلط نیت سے ماروش سے نکاح کر رہا تھا، مگر میں آرشین کو نہیں کھو سکتا، مجھ پہ رحم کرے، آرشین کو اس سے بے خبر رکھے، میں یہ ملک چھوڑ دوں گا، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، مگر آرشین کو مجھ سے بدظن نہیں کرنا پھوپھا جان۔ اسناد منتیں ترلے کرتے ہوئے روحان سے لہجے میں بولتا، ماروش کو پتھر بنا گیا تو یہ تھی ماروش کی اصلیت، بس اتنی ہی تھی ماروش کی قدر۔ ماروش اتنی کہی گزری تھی کہ اس کے ہونے والا شوہر کسی اور لڑکی کے لیے گڑگڑا رہا تھا، ان لوگوں کے سامنے کسی اور کے لیے گڑگڑا رہا تھا جن لوگوں کو ماروش نے بتا رکھا تھا کہ اسناد ماروش کے عشق میں گرفتار ہے۔ کیا بے عزتی تھی! رشتہ دار، محلے والے، دوست احباب سب اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر ماروش کو ترس والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ماروش سجی سوری ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ ماروش پتھر کی بت کی طرح گرتی پڑتی اسٹیج سے نیچے خود ہی اتر آئی، کیونکہ باقی اب اپنی تکلیف میں تھے۔ ماروش کو سنبھالنے کا کسی کو ہوش نہیں تھا۔ ماروش بھائی گاؤن کے بوجھ تلے دبی پینسل ہیل سے دکھتی ہوئی ایڑیوں سے لڑکتے ہوئے قدم اٹھاتی سیدھا اسناد کا گربان پکڑ چکی تھی۔ کیا تھا یہ سب؟ ہاں ہاں کیا تھا یہ سب؟ محبت کے وعدے! میں نے زندگی میں پہلی بار کسی شخص کو اتنی اہمیت دی۔ کہو یہ سب جھوٹ ہے، کہو تمہاری زندگی میں کوئی آرشین نامی لڑکی نہیں، اب بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں، ماروش پاگل پن کی انتہا کرتے ہوئے بولی، جبکہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ماروش کے فیصلے کو سن کر حیدر صاحب کا دل چاہا وہ اس لڑکی کی جان لے لے۔ اسناد نے ایک دم ماروش کو دھکا دیا۔ آرشین میری محبت ہے ماروش، اور میں اس سے کسی قیمت دستبردار نہیں ہو سکتا، اسناد روتے ہوئے بولا۔ اور میں کون ہوں؟ ہاں میری کیا اہمیت ہے تمہاری زندگی میں؟ ماروش آہستہ لہجے میں رنج کی شدت سے کپکپاتے ہوئے بولی۔ اسے لگا جسے سرینا کہہ رہی ہو، کہو کیسا لگتا ہے جب قصوروار نہ ہو اور اس کو قصوروار گردانا جائے۔ ماروش کو لگا جسے ماضی اپنے آپ کو دہرا رہا ہو، بس فرق صرف اتنا تھا کہ آج سرینا کی جگہ ماروش کھڑی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ماروش کو سرینا کا دکھ محسوس ہوا تھا۔ کیسا لگتا ہے جب آپ کی ذات کو کوئی پل بھر میں دو کوڑی کا کر کے رکھ دے؟ ماروش کو لگا سرینا اس پہ کیف میں لگا کر ہنس رہی ہو۔ تم میری زندگی میں آنے والا عارضی پڑاؤ ہو ماروش، جس کی زہری چمک دیکھ کر میں وقتی طور پر بہک گیا تھا، لیکن تم میری منزل نہیں ہو معذرت کے ساتھ، اسناد روتے ہوئے بولا، کیونکہ اس سے آج آرشین جدا ہونے والی تھی۔ کہتے ہیں نا کوئی کتنا ہی سنگدل اور بے حس کیوں نہ ہو، اس کی کمزوری اس کا محبوب انسان پھر بھی ہوتا ہے، اور اسناد کی کمزوری آرشین آفریدی تھی۔
कमीने इंसान जब एक बीवी थी तो मेरी बेटी को जाल में फंसाने की क्या ज़रूरत थी। नादिया बेगम ने सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ते हुए असनाद के मुँह का रुख दूसरी तरफ फेर दिया। बस शाहज़ेन, एहसन और जलाल साहब बस खामोश तमाशाई बने खड़े देख रहे थे। आपकी बेटी खुद ब खुद मेरी तरफ झुकती चली गई। मैंने इनको बहुत समझाया कि हम शादी नहीं कर सकते। मैंने एक लम्हा के लिए भी आपकी बेटी से मोहब्बत नहीं की। अपने बाप की अय्याशी के ओझ जो कर्जा लिया था इसकी भरपाई करने के लिए मैंने सोचा कि मारवी एक अच्छा ऑप्शन रहेगी। असनाद आगे भी कुछ बोलता, मारविश ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया। कमीने इंसान, मेरी ज़ात को इतना बेमूल कर दिया। भीख मांग लेते, मैंने एक निकाह के लिए लाखों लगा लिए। देखो देखो, एक एक फूल और एक कली पे दिन रात मेहनत मेहनत लगाई है मैंने। मुझे देखो, मेरे कपड़ों को देखो, तुमने मुझे अपने माँ बाप के सामने रुस्वा किया। कमीने इंसान, मैं तो जीने के लायक ही नहीं रही। तुमने सारी दुनिया के सामने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। अरे भेड़िए, कुछ भी करते मगर मोहब्बत के नाम पर खिलवाड़ ना करते। दिल अंदर से टूट गया था। मारविश अपने सीने पे हाथ मारते हुए फलक शगाफ चीखें लगाकर रोते हुए ज़मीन पर बैठ चुकी थी। जबकि नादिया बेगम अपनी बेटी की हालत देखकर सोच रही थी कि सरीना को भी एक दिन इसी अजियत से गुजरना पड़ा था। तब उन्होंने इसे जलील व रुस्वा किया था। क्या इनका किया धरा सामने आ रहा था जो इनकी इज्जत अब जिल्लत में बदल गई थी। तुमने मुझे अपनी ज़ात से नफ़रत करवाने पे मजबूर कर दिया है। मैंने सबसे लड़कर तुमसे निकाह के लिए इजाज़त मांगी, ये सिला मुझे मिला। मारविश रोते हर दिल रखने वाले को रुला रही थी। सिवाय इन लोगों के जो तमाशाई थे, जो मकाफात अमल होने से पहले तक तमाशाई रहते हैं। मारविश ने आज पहले इस कदर गहरी चोट नहीं खाई थी। आज की चोट इस कदर शानदार थी कि दर्द से मारविश का अंग अंग बिलबिला उठा था। आज मारविश ने दर्द महसूस किया था कि लोगों के सामने जब इज्जत का जनाजा निकल रहा हो और आप कसूरवार भी ना हो तो क्या बीती है दिल पे। हाय अफसोस, मारविश के दिल ने भी दर्द का एहसास जाना, मगर ठोकर खाने के बाद। काश मारविश पहले समझ जाती, इतनी खुसर ना होती। मारविश ज़मीन पे बैठी ज़ोरों को तार रोने लगी, इर्द गिर्द चमोगियाँ होने लगी। मारविश का बेहद महंगा गाउन इस वक्त मिट्टी में लुढ़ रहा था। जिस शख्स के लिए वो सबके सामने डट के, वो शख्स सबके सामने इसकी ज़ात को फरामोश करके किसी और के लिए तड़प रहा था। एक मोहब्बत करने वाले के लिए इससे बड़ी शिकस्त और ज़िल्लत और क्या हो सकती है। मारवी ज़मीन पर बैठी किसी शिकस्ता हारे जवारी की तरह लग रही थी, जिसने अपनी सारी मोहब्बत असनाद आफरीदी जैसे बेहुदा शख्स से लिखवा दी थी। कुछ भी नहीं रहा मम्मा, कुछ भी नहीं बचा। इस शख्स ने तोड़ दिया मेरा गुरूर, सबके सामने मुझे धुतकार दिया। मैं इतनी खूबसूरत हूँ ना मम्मा, फिर मुझे क्यों लोग प्यार की वजह इस्तेमाल करते हैं। मारवी सुर्ख आंखें लिए तड़पते दिल दिल बरसता लहजे में बोली। मारवी ज़मीन पर बैठी ऐसे लग रही थी जैसे मोहब्बत के लिए झोली फैलाए बैठी हो, मगर असनान आफरीन ने खाली खुशकोल के साथ तहदामा कर दिया हो। पुलिस की भारी नफरी बाहर आ चुकी थी। शाहजैन ने पुलिस स्टेशन फ़ोन करके इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। इनको तक इज्जत के केस में फ़िलहाल अंदर किया जा रहा था, लेकिन बाद में शाहजैन सारे केस खोलने का इरादा रखता था। असनाद और उसके वालिद को हथकड़ियाँ पहनाई जा रही थी। असनाद ने एक शर्मसार निगाह मारविश की जुड़ी हालत पर डाली और फिर बेदिली से गिरफ्तारी दे दी। फूफा जान, मैं आशिन के लिए एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, आप इसे कुछ मत बताना, आपको खुदा का वास्ता है। असनाद जाते हुए भी जलाल आफरीदी की मिन्नतें करते हुए मारविश को जलालत की अथाह गहराई में फेंक गया। इसे चाहते हुए भी अपनी मोहब्बत की फ़िक्र थी और जिसने इसकी मोहब्बत की खातिर इतनी ठोकर खाई। एहसान चाहते हुए भी मुँह झूठे मुँह ही सही, मगर माफ़ी के दो लफ्ज़ बोल के न गया। क्या इससे ज़्यादा किसी की ज़ात की तौहीन हो सकती थी। दिल ज़िंदा दरगोर कैसा होता है, ये आज मारविश ने जाना था। गम की शिद्दत और बेतरबे दुख के झटकों ने मारविश को निढाल कर दिया था। इसे सर घूमता हुआ महसूस हुआ। मारविश बेहोश होकर नीचे गिर गई। अब इश्क के इम्तिहान और भी थे। असनाद और वक़ार साहब को पुलिस पकड़कर गाड़ी में बिठा चुकी थी। मारविश को उठाकर हॉल कमरे में ले आई, क्योंकि मोहब्बत में नाकामी ने मारविश का दिमाग सलब कर लिया था। हैदर साहब और नादिया बेगम तो मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहे थे। एहसन और शाहज़ैन नाराज़ होकर जा चुके थे, क्योंकि साइम और हैदर साहब ने इन लुटेरों पर यकीन करना मुनासिब समझा, मगर इन पर एतबार नहीं किया था। साइम पुकारता रह गया, मगर शाहज़ैन और हसन दोनों ही असनाद और वक़ार साहब की गिरफ्तारी के साथ ही जा चुके थे। आंसा और अफशा खाला भी जा चुकी थी, क्योंकि हैदर साहब ने गुस्से में बोल दिया था कि इनकी साख खराब हुई, इन्हें घर में तमाशाई लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अफशा खाला को ये बात बुरी लग गई और वो चलती बनी, और नादिया बेगम को इस वक्त अपनी बेटी का दुख निढाल किए जा रहा था। उन्होंने भी जाते हुए इन्हें मुंह नहीं लगाया।
नादिया बेगम का तो दिल हौल रहा था मुस्तकबिल को लेकर। अब मारविश कैसे इतनी बड़ी शिकस्त तस्लीम करेगी, क्योंकि मोहब्बत में नाकामी से बड़ी हार कोई नहीं। और मारविश मोहब्बत में बहुत आगे चली गई थी, इतनी आगे जहाँ से वापसी में से काफ़ी वक्त लगना था। और नादिया बेगम मारविश का इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मारविश गनुदगी की हालत में थी। डॉक्टर को घर ही बुलवाकर चेकअप करवाया गया, क्योंकि मार्विस ने बाहर जाने से इनकार कर दिया था। वो कैसे बाहर फेस करेगी इतने लोगों को। अब वो घर से कभी बाहर नहीं निकलेगी, मार्विस ने ठान ली थी। नादिया बेगम परेशानी पेशेमानी में खैर खूब बैठी थी। काश नादिया बेगम ज़रा सी जांच पड़ताल कर लेती तो इन्हें इतनी दुश्वारी से गुजरना ना पड़ता। जकलन का दिमाग माफ हो गया था। वो जैसे तैसे करके घर में काम वाली को बच्चों समेत रात सरीना के पास रहने का कहकर आकर आ गया था। ड्राइवर को भी बर वक्त सरीना को पिक करने की नसीहत करके इसी वक्त सकलन गाड़ी लेकर निकल चुका था। आधी मसावत तय हो चुकी थी। मोटरवे की वजह से अब सकलन को अपने शहर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। सकलन को खुद पता नहीं था वो गाड़ी कैसे चला रहा है, बल्कि सकलन गाड़ी को इस तरह चला था कि गाड़ी उड़ती हुई लग रही थी। सकलन जम खड्डा देखे बगैर अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था, बगैर अपनी ज़िंदगी की परवाह किए, क्योंकि सकलन किसी तौर भी मारविश को इस घटिया शख्स के साथ बांधना नहीं चाहता था। मारविश को तो आज सकलन अच्छी खासी सुनाने का इरादा रखता था। इसकी अकल ठिकाने अब तक आ जानी चाहिए, मगर इस बेहुदा इंसान की हिम्मत कैसी हुई कि वो मारविश को अपनी चालबाजी का शिकार करवाना चाहता था। सकलन गम व गुस्से का शिकार बस गाड़ी दौड़ाए जा रहा था। मारविश ने कपड़े भी नहीं बदले थे और ना ही किसी को करीब आने दे रही थी। जब से होश में आई थी सर घुटनों में दिए रो रही थी। वो किस मुंह से सबकी नज़रों का जवाब देती। हैदर साहब और साइम के कहने के बावजूद नादिया बेगम मारविश ने इन्हें किसी किस्म की जांच पड़ताल करने से मना कर दिया था, और अब इसका नतीजा मारविश को तबाही और नाकामी की सूरत हाल में भुगतना पड़ रहा था। मारविश को दुख इस बात का था कि वो दूसरी बार मोहब्बत में ठुकराई गई है। खूबसूरत होने के बावजूद किसी को मारविश की चाह नहीं, क्यों दोनों बार किसी और की खातिर मारविश को ठुकराया गया। मारविश को आज इमरान खान की कदर भी आई थी। बेशक इसने सरीना की खातिर मारविश को धुतकार दिया था, मगर कम से कम मोहब्बत के धोखे में तो नहीं रखा। इसे नहीं थी मारविश से मोहब्बत, तो सरेआम इसने मारविश से इस बात का इतराफ़ तो किया। इसने आज जैसे बदनस्ले शख्स की तरह मोहब्बत का लाड़ा लगा के यूं आधे रास्ते में बदनामी के लिए छोड़कर तो नहीं गया। मारविश का दुख इसे अंदर से खाए जा रहा था। कुट कुट के कब तक रोती। मारविश का दिल फट रहा था। क्या वो सारे हसीन पल महज दिखावा थे? मगर मारविश का क्या कसूर, इसने तो सच में मोहब्बत की थी। मारविश ने अचानक से तेज़ आवाज़ में फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मारविश की इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर घर में मौजूद सारे नफस हॉल कमरे में दौड़े आए। मारविश मेरी जान, हौसला रखो, खुदा इसे ज़रूर रस्वा करेगा। मेरी बच्ची, तुम्हें बर्बाद करने वाला कभी आबाद नहीं होगा। नादिया बेगम भी रोते हुए जख्मी लहजे में फनकारी। मारविश का दिल जैसे साकित होने लगा। यानी किसी और को तबाह करने वाला कभी नहीं हो सकता। यानी ये तबाही मारविश के अपने करदा गुनाहों की स्याही का सिला है। इसने भी तो सरीना को बदनाम करने की गर्ज से एक साजिश रचाई थी। तो गोया मारविश के साथ किसी ने गलत नहीं किया था, बल्कि मारविश ने जो बोया था वही काटा था। अम्मी मैं रुसवा हो गई हूँ बाबा जी। बाबा जी, इसने इतनी भी कदर नहीं कि मैंने आपके खिलाफ जाकर इसे पसंद किया था। कम से कम वो मेरे इस फैसले की लाज ही रख लेता। मैं जानती हूँ आप दोनों मुझसे बहुत नाराज़ हैं, लेकिन इस बार सच में मेरी नीयत साफ़ थी। मैंने सोचा आप वैसी जाँच पड़ताल के चक्करों में पड़कर वक़्त का ज़िया करेंगे। मैंने इससे शादी करके एक अच्छी लाइफ़ सोची थी। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था वो इस तरह आप सबकी इज़्ज़त का जनाज़ा निकालने का बाइस बनेगा। मैं लाख बुरी सही पापा, लेकिन यकीन माने आपको झुकता हुआ कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। मारविश रोते हुए भारी गाउन उठाने की नाकाम कोशिश करते हुए शर्मसार लहजे में माफ़ी मांग रही थी, मगर हैदर साहब इस कदर नाराज़ थे कि कुछ ना कहा। फिर नादिया बेगम को हौसला देने का इशारा किया। आखिर लाख सही, मगर थी तो वो इनका खून। इसका रोना इन्हें तकलीफ़ में मुब्तला कर रहा था। मेरा अंग अंग दुख रहा है इस धोखे के करब से बाबा। हैदर साहब सोफे पे इसके पास आकर बैठे तो पहली बार वो इनसे बड़ी मोहब्बत से मुखातिब हुई। वो एकदम हैदर साहब के कंधे से जा लगी। हैदर साहब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस खामोशी से अपनी उजड़ी बेटी को देखने लगे, जैसे मोहब्बत में नाकामी ने दर्द से रोशनास करवा दिया था। मारविश के इस तरह हैदर साहब के गले लग के रोने से हर आग अश्कबार थी। हाय का तो पुप्पो पुप्पो पुकार कर दीवाना वार रो जा रही थी। हैदर साहब मारविश को समझाना चाह रहे थे, मगर वो इस वक्त नहीं थी, क्योंकि इस वक्त इनकी बेटी तकलीफ से गुजर रही थी, और तकलीफ से गुजरने वाला शख्स मोहब्बत चाहता है। हैदर साहब इसे थपकी देकर इससे अलग हुए तो नादिया बेगम मारविश के बाल संवार कर इसे तलाशा देने लगी।
मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे ही मोहब्बत में नाकामी क्यों हुई? इतनी ज़िल्लत, इतनी तज़लील मेरी ज़ात की कि मैं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही। मारविश अपने खूबसूरत भारी गाउन को सँभालती अपने सजे-संवारे बालों को पूरी तरह से नोचते हुए, दर्द से कराहते हुए बोली, "आपने भी तो किसी बेकसूर पे तोहमत लगाई है एक प्लानिंग के तहत। मुझे तो इसी दिन का डर था कि आप कहीं मकाफ़ात अमल से ना गुज़रे क्योंकि आप तो भूल चुकी थी। अल्लाह ताला की लाठी भी आवाज़ है, नहीं पता कब उठे और आप जैसे सारे फ़िरौनों को ढूँढ डाले।" सकलन अचानक हॉल में एंटर होते हुए मारविश के सवाल का जवाब देते हुए बोला। मारविश का तो दम घुटने लगा था। क्या भाई इस रात की हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं? कि अगर ऐसा था तो मारविश का दिल चाहता ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। अब वो मज़ीद ज़लालत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जबकि नादिया बेगम खुशी और नासमझी के आलम में सकलैन को देखी जा रही थी। सकलैन बैठा, कैसी बातें कर रहे हो? हम पर आज क़यामत गुज़र गई। नादिया बेगम मारविश को संभालते हुए रोते बोली, घर की सजावट बता रही है ये क़यामत आपकी बुलाई गई थी। इस क़यामत को दावत देने वाली आप खुद हैं। सकलैन बेटा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। खुदा का लाख लाख शुक्र है तुम इस मुसीबत के वक्त आ पहुँचे हो। अब आ ही गए हो तो बहन के लिए दिल आज़ारी का बाइस ना बनो। जबकि मारवी से नज़रें ही नहीं मिला पा रही थी। बाबा जान, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इतनी भारी थी आप सब पे बेटी, जो इस कदर निकाह की जलती थी कि इनकी पूछताछ तक न कर सके आप लोग? और मारविश, आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप क्या माजी में की गई किसी गलती का पछतावा हुआ कि नहीं, या अब भी अपने किए जाने पर अकड़ और गुरूर है बजाय शर्मिंदगी के? सकलैन ज़ोमैनी अंदाज से खरत लहजे में इस्तफ़ार करता हुआ मारविश की सांस तक बंद कर गया। कैसी बातें कर रहे हो तुम सकलैन? मेरी बच्ची इस वक्त तकलीफ़ में, एक कमीना इंसान इसे मोहब्बत में धोखे से ठुकरा कर जा चुका है और तुम होके इसके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हो बजाय इसकी दिलजोई करने के। नादिया बेगम दुखारे लहजे में आंसू बहाती हुई बोली, एक कमीना इंसान धोखा देकर गया तो बचाने वाले भी वही आया है जिसकी ज़िंदगी को आपकी बेटी ने प्लानिंग के साथ तबाह करने की कोशिश की थी। लेकिन बेशक अल्लाह सबसे बेहतर प्लान करने वाला है। किस्मत की सतमतरफ़ी देखें कि वही शख्स मारविश को बचाने आया है। सकलैन का एक-एक लफ्ज़ मारविश को शर्मसारी और ज़िल्लत की गहराई खाई में धकेल रहा था। मारविश पे आज ये क़यामत टूटनी थी, लाज़िम थी क्या? मुलाज़िम से सारा मामला पूछ कर आया हूँ। एहसन ख़ान को आपकी बेटी जानती है अम्मी जान? ज़रा पूछे ना, मेरे जिस दोस्त को आप लोग कोई नहीं जानता। मारविश से पूछे तो सही, कैसे जानती है? एहसन रूहान से लहजे में अपना ऊँचा बोलते हुए मारविश की तरफ इशारा करके सवाल पूछने लगा। क्या कहना चाहते हो बरखुरदार? मुझे पहेलियों में मत समझाओ। कहना क्या चाहते हो? जबकि मारविश तो डर और खौफ के मारे थर-थर काँपने लगी। ये हकीकत खुलने के बाद तो शायद ही मारविश को कोई माफ़ कर सके। तो क्या मारविश अपने ऊपर सारे दरवाज़े बंद कर चुकी थी? मारविश का पूरा जिस्म इर्तिशाद भरपा कर रहा था। मारविश को लगा आज तो क़यामत से कम तूफ़ान नहीं आया। मारविश के खौफ से होंठ नीले पड़ रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से सकलैन? सीधी-सीधी बात करो। हम आगे ही लोगों की तौहीन आमीज़ नज़रों का सामना कर चुके हैं। मज़ीद कितनी तूफ़ान से गुज़रना पड़ेगा? साइम सख्त बेरहमी से उकता कर बोला, सरीना की ज़िंदगी में क़यामत बर्पा करने वाली, इसे लोगों में रुसवा करने वाली, आज जब खुद इस कर्ब से गुज़री है तो संभल नहीं पा रही। पूछे इससे क्यों किया इसने ऐसा? इसने जो बोया था आज वही काट रही है। सकलैन गुस्से से सारी रात अफ़शा करते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बच्ची इस वक्त दुख से चूर है और तुम इस पे मज़ीद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो। शर्म करो। नादिया बेगम गुस्से से दहाड़ी। मैं शर्म करूँ? मुझे आप सबसे ज़्यादा दुख अपनी बहन की नाकाम मोहब्बत का है, अपनी बहन की ज़िल्लत का, इसकी रुसवाई का मुझे भी शदीद गम है, मगर मेरी बहन का माज़ी गुनाहों की स्याही से स्याह तरीन है। मारविश ने माज़ी में किसी और को बदनाम करने की साज़िश रचाई थी। मैं जानता हूँ आप सब मुझ पर बरहम हैं। आप सबको मैं इस वक्त मतलबी लग रहा हूँ कि तकलीफ़ की इस घड़ी में मारविश के ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहा हूँ, मगर मैं इसे सीधी राह दिखाना चाहता हूँ। मैं मारविश को बताना चाहता हूँ कि इतनी अना खुदसरी अकड़ अच्छी नहीं होती। खुद पसंदी, खुद एतमादी बहुत अच्छी चीज़ है, मगर किसी और को हक़ीर जानकर इसे तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा करना कहाँ की दानिशमंदी है। मारविश की आंखें पथरा गई थी। आज इसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सच खुलने वाला था। यानी भाईजान गए थे कि सरीना को बर्बाद करने वाली कोई और नहीं मारविश है। बेटा, खुदा का वास्ता है, क्या हकीकत है? कुछ बताओगे भी कि नहीं? हैदर साहब परेशानी से पसीना साफ करते हुए बोले। सरीना को रात के वक्त कॉल करवा के घर से निकालने पर मजबूर करने वाली मारविश है मावा जान। मेरी बहन ही मेरी मोहब्बत की कातिल निकली। सकलन सारे नफूस पे बम फोड़ते हुए खुद सोफे पे जैसे ठासा गया। क्या कह रहे हो? हैदर साहब, नादिया बेगम, फरिया और साइम चारों का सदमे से जैसे बुरा हाल था। मारविश तो आंखें बंद करके बस रोई जा रही थी। नदामत थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी।
सकलैन रोते सिसकते हुए सब कुछ बताता जा रहा था और सब के सब गंग बने बस मारविश का कारनामा सुनते जा रहे थे, जबकि मारविश गिल्ट और शर्मिंदगी के बायस ज़मीन पे गिरती जा रही थी। मारविश का दिल चाहता जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। मोहब्बत में नाकामी और माजी की कोताहियों ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा था। मारविश का जिस्म सूखे पत्ते की तरह लजरा रहा था। मारविश ने आंखें बंद कर ली थी। हैदर साहब और साइम का हैरानगी से बुरा हाल था, जबकि नादिया बेगम तो किसी तौर इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। क्या वो सेलिना पे सारी ज़िंदगी सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करती रही थी? मतलब एक बेगुनाह को गुनहगार गरदानी रही। मारविश क्या ये सच है? हैदर साहब ने बहुत ही संजीदा अंदाज में इंतहाई तलख लहजे में सफ़ार किया। मारविश ने हल्के से सर को चंबिश देकर सर हाँ में हिलाया और हैदर साहब और साइम तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी। फरिया का हैरत और सदमे से बुरा हाल था, जबकि नादिया बेगम तो मुजरिम बनी बस पेशेमानी से ज़मीन पे गिरती जा रही थी। मालविश हैरानी अंदाज में उठी और अगले ही लम्हे जाकर सकलैन के कदमों पे लड़खड़ा कर गिरी। भाई, मुझसे नादानी में वो गुनाह हो गया। मैं मोहब्बत में नाकामी से एहसास कमतरी में चली गई थी। मुझे ये दुख शिद्दत से खा जा रहा था। मैं इतनी खूबसूरत और वो लड़का इमरान खान सरीना से मोहब्बत क्यों करता है? जब सारे हुर्बे आजमाने के बाद भी वो लड़का ना माना तो मैंने सरीना और इमरान खान दोनों को ज़लील व रुसवा करने की साजिश रचाई, बहस अपनी अना को तकसीम के लिए। मैं वाकई गुनाहगार हूँ भाई, मगर मेरा दुख भी छोटा नहीं है। मेरे सच्चे जज्बे दो बार ठुकराए गए। मेरे चाहने में तो कोई खोट नहीं थी, हर बार मुझे ही क्यों धुतकारा गया। भाई, मुझे माफ़ कर दें। मारविश सकलैन के पाँव पकड़कर रोते हुए बोली। कैसे माफ़ कर दूँ आपको? आपको तो इतना सब करने के बाद भी नदामत महसूस नहीं हुई? आपने सरीना को बदनामी बख्शने के बाद ज़िंदगी इस पे तंग कर दी। आप और अम्मी जान ने तो इस पे बेकसूर का जीना मुहाल कर दिया। आपने ये भी नहीं सोचा वो आपके मरहूम चचा की सगी और अकलौती औलाद है। आपने एक यतीम मस्कीन बच्ची पे रहम नहीं खाया तो खुदा आप पे कैसे रहम खाता? मारविश, ना बाप, दिन रात आप लोगों के ताने। सरीना की इतनी दिल आज़ारी की कि आप दोनों ने मिलकर के इसे खुदकुशी जैसे हराम फ़ेल करने पे मजबूर कर दिया। मगर फिर भी आप लोगों को शर्मिंदगी का एक ज़रा तक एहसास नहीं हुआ। आज आप दोनों को किसी ने धोखा दिया तो पल भर में टूट कर बिखर गए हो। आपको आज भी एहसास हुआ ही नहीं कि आपके पास तो माँ है, भाई है, जान से बढ़कर चाहने वाला बाप है। फिर भी आपका दुख शदीद तरीन है। तो सोचिए, एक यतीम बच्ची जिसका वाहिद सहारा मैं था, आपने और अम्मी जान ने मिलके इसके साथ क्या किया? इतना सब कुछ करने के बाद आप लोग मकाफात अमल क्यों भूल गई थी? ये तो इतना बुरा भी नहीं हुआ, बच गई हैं आप। मगर ये सब जो आपके साथ हुआ है ना, ये सरीना के सब्र का नतीजा है। इसके पहाड़ जैसे सब्र ने आपके समंदर जैसे गुरूर को लहरों की उलझन में डालकर ऐसा उलझाया कि अब आप शायद इसका दर्द जान सको। नहीं, माफ़ करूँगा आपको और अम्मी जान को इस तकलीफ अमल को करने के लिए। सकलैन रोते से लगते हुए मारविश और अम्मी जान को इनकी हकीकत का आईना दिखाते हुए इन्हें शर्मिंदगी की गहरी खाई में धकेल रहा था। मारविश क्या बोलती, ज़िंदगी में पहली बार तो इसने सर तस्लीम ख़म किया था। पहली बार तो इसने दर्द महसूस करना चाहा था। मुझे माफ़ कर दें भाई, मैं आपकी गुनहगार हूँ। सरीना हिल्स को पैरों से आज़ाद करती दुखते पाँव से सकलैन के पाँव पकड़ना चाह रही थी, मगर सकलैन रास्ते से हट गया। तुम्हें काश ये ठोकर पहले लग गई होती माविश, तो तुम्हें अकल ज़रा पहले आ जाती। माजरत के साथ, तुम्हारा गुनाह काबिल माफ़ी नहीं है। रोना बंद करो, इस बात को तस्लीम करो मारिश के तुम गुनहगार थी। तो रब ने इसके सिले में तुमसे इस घटिया शख्स को मिलवाया, जिसने तुम्हें रोशनास करवाया कि एतबार का टूटना क्या होता है। तो ये सब तुम्हारा किया धरा तुम्हारे सामने आया है। सकलैन मारविश के हाथ को झटकता हुआ काफ़ी अरसे बाद अपने कमरे में जा चुका था। बाबा जान, मुझे माफ़ कर दें। मारविश दीवानावार भागते हुए हैदर साहब की तरफ गई, मगर उन्होंने खुद से दूर रखने पर मजबूर कर दिया। मारविश बेटा, अपने जुर्मों का खमीज़ा खुद ही भुगतो। जिस दिन सरीना ने तुम्हें माफ़ कर दिया, हो सकता है इस दिन मैं भी माफ़ कर दूँ। इससे पहले तो ऐसा मुमकिन नहीं। तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से मुझे आज तुम्हारा बाप होने में शर्मसारी महसूस हो रही है। काश मैं ये दिन देखने से पहले मर गया होता। हैदर साहब मायूस कुन लहजे में कहते ही मारविश को बेआस छोड़ गए। साइम, फरिया और हायका को ज़बरदस्ती घसीट कर गुस्से से बड़े बड़े ढंग भरता वो भी अपनी नाराज़गी का इजहार कर चुका था। मालवी ज़मीन पर बैठ कर खबरियों की तरह दीवानावार चिल्लाने लगी। मुझे मोहब्बत की नाकामी ने तोड़ दिया। आप लोग क्यों नहीं समझते? मुझे सज़ा मिल चुकी है। मैं पल पल मर रही हूँ। मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देते आप लोग? नादिया बेगम नीचे ज़मीन पर झुक के इसे हौसला देने लगी। आप भी चले जाइए अम्मी जान, आप भी चले जाएँ। खुदारा, काश आपने मुझे रोका होता। काश आपने मेरी बेइज्जती को नज़रअंदाज किया होता। आपने मुझे क्यों नहीं रोका अम्मी जान? मैं नादान थी, मैं बेवकूफ़ थी। आप मुझे भी समझाती, मगर आपने तो आंसा की मोहब्बत में
सारी ज़िंदगी सरीना से नफ़रत की। काश अम्मी जान वक़्त वापस के लौट आए और मैं अपनी ज़ात को गुनाहों से धुला सकूँ। अम्मी जान कोई भी मेरे पास नहीं रहा। बाबा जान, भाई, भाभी सब सिर्फ़ सरीना के इफ्तिख़ार के साथ किए जाने वाली ज़्यादती की पादाश में मुझे अकेला छोड़ गए। आप भी चले जाइए, आप भी चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे तन्हाई चाहिए। मारविश अपने बाल नोचती नादिया बेगम को अकेला छोड़कर भारी गाउन घसीटती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। सकलैन मारविश को हकीकत का आईना तो दिखाया था, मगर ये भी सच था कि अपनी बहन की उजड़ी हालत को देखकर सकलैन को रहम आ गया था। सकलैन खुद मोहब्बत के कर्ब से गुजर चुका था। मोहब्बत में ऊंच नीच इंसान को किसी हाल का नहीं छोड़ती। सकलैन का दिल अंदर से मारविश के लिए उदास था, मगर इस वक्त भी अगर इस सब ने इसकी हौसला अफजाई की, इसे अच्छे बुरे में फ़र्क न समझाए, तो इसे कभी भी अपनी गुनाहों का एहसास नहीं होगा। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी बाप का प्यार दस्तूर रहा, भाइयों का रवैया नॉर्मल रहा, तो इसे तो बुरा करने का एहसास ही नहीं होगा। सकलैन को गम से खलासी का एक ही तरीका समझ आया, और वो था सरीना से बात। सकलैन ने जल्दी से मुलाजिम के नंबर पर कॉल मिला के सरीना को मोबाइल ऑन करने की हिदायत जारी की। सरीना ने जैसे ही मुलाजिम के कहने पे मोबाइल ऑन किया तो सकलैन की कॉल आना शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम सकलैन, आपको पता है मैं आपकी टेंशन से मर रही थी। बंदा बता के तो जाता है ना, रात पड़ रही है, मेरा दिल वसवसों में घिरा हुआ था। सरीना ने झट से फ़ोन उठाकर बोला, मैं भी दर्द से मर रहा हूँ, कोई मसीहा नहीं, कोई चारा साज नहीं, दिल ज़ख्मों से चूर है और आपसे भी दूर हूँ। सकलैन ज़ख्मी अंदाज से सरीना को परेशान कर गया। क्या हुआ सकलैन, मैं परेशानी से मरी जा रही हूँ, सब कुछ ठीक तो है ना? वहीद भाई और उनकी फैमिली क्यों रात को रुके हैं मेरे पास? आप लौट के क्यों नहीं आए हैं? और आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? आप ठीक तो है ना? सरीना सकलैन पर सवालों की पुचार करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ दिल, आप परेशान हो, बस बारिश का निकाह होते होते रह गया, बस इसी की परेशानी थी, मैं आज रात नहीं आ सकता। मैं जगह से हिल भी नहीं पा रहा, जिस्म ज़ख्मों से चूर है, ऐसा लगता है दिल ने मज़ीद जीने से जवाब दे दिया है। मगर आपकी आवाज़ एक खूबसूरत एहसास है, आपका साथ एक खूबसूरत दिलनशीं तोहफ़ा है खुदा का। तुम्हारे लम्स का असर के वजूद अभी भी कई बीमारियों में है, मगर सुकून में है। लोग कहते हैं नफ्सियात के माहिर से मिलो, वो नहीं जानते कि हल तुम्हारे फ़ोन में है। ओके, आप परेशान ना हो, आप कल वापस आएँ, फिर आपसे तफसील से बात करती हूँ। खाना खाया आपने? सरीना परेशानी से बेहाल हो रही थी, मगर सकलैन से कैसे सारा किस्सा पूछती, वो खुद परेशान था। खाना हलक से नहीं उतरता सरीना, आप खाना खा लें, मैं आपके हाथों से खाना खाऊंगी। आपको तो पता है जब तक पहला निवाला आप ना डालें खाने में लज्जत नहीं आती, भूख नहीं मिटती मेरी। सरीना के अपने दुख थे। खाना खा लें आप, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। आप भी आप खाएंगे तो खाऊंगी। अच्छा, मैं खाना लगाऊँ, आप भी खा लेना। खुदा हाफिज़ जान, लव यू। सकलन सरीना को खुश रखने के कर्ज से झूठ का सहारा लेते हुए कॉल काट चुका था। सकलन सुबह बेदार हुआ तो आज इसका इरादा एहसन खान के घर जाकर इसकी हकीकत से पर्दा उठाने का था। कौन है वो, अशमरान खान या एहसन खान या फिर कोई और? सकलन तैयार होकर सीधा एहसन खान के घर जा पहुंचा। मुलाजिम ने बताया कि एहसन खान अपनी होने वाली बीवी और बहन के हमरा बाजार गया हुआ है। सकलैन का इरादा वापसी का था, मगर न जाने क्यों सकलैन ने मुलाजिम से एहसन की अम्मी से मिलने की इजाज़त चाही। सुफिया बेगम ने एकदम सकलैन को अपने रूम में बुला लिया। सकलैन जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, सुफिया बेगम को जाए नमाज से बैठे कुछ जिक्र करते हुए पाया। सकलैन की निगाहें कमरे का तवाफ करने लगी। सामने दीवार पे सारी फैमिली की फ्रेम हुई तस्वीर देखने लगा, जो बड़ी ही तरतीब से लगी हुई थी। दलाल खान मरहूम की तस्वीर के बिल्कुल साथ हिना खान की हंसती खिलखिलाती तस्वीर, नीचे सोफिया दलाल की तस्वीर, मगर ये क्या, नीचे दो एक जैसी अलग अलग तस्वीरों को देखकर सकलैन पल भर के लिए ठिठक गया। दो एक जैसी तस्वीरें, मगर आंखों का रंग बिल्कुल मुख्तलिफ था। सकलैन के दिमाग में बहुत से सवाल जन्म लेने लगे। सकलैन का दिमाग सुन्न होकर रह गया। ये सब क्या था? क्या इमरान खान एहसन खान का जुड़वा भाई था? मगर एहसन खान के मरे हुए भाई का नाम तो सामिल खान था, तो फिर अशमरान खान कौन है? या खुदाया कुछ भी हो, मगर एहसन खान या अशमरान खान ना हो, क्योंकि एक तो मनपसंद बीवी को चाहने वाला कम से कम इस नौयत में सकलन हैदर को बर्दाश्त नहीं था, और दूसरा बहन ने जो हरकत की थी, अगर वो शख्स ये एहसन खान निकला तो सकलन किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। या खुदाया मुझ पे अब रहम करना। सकलन हैदर ने कमरे का जायज़ा लेते हुए दिल से दुआ की थी। अरे आओ बेटा, खड़े क्यों हो? मेरा व्रत रहता था ना, सोचा मुकम्मल कर लूँ। तुम्हारे आने की खबर मुझे मिल चुकी थी। सुफिया दलाल बेगम चाय नमाज समेट कर साइड पर रखकर खड़े होते हुए बोली, कैसी हैं आप आंटी? सकलैन बाकी की बातों को जहन से जुटाता इनकी तबीयत दरियाफ़्त करते हुए बोला, अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, वरना अब जीने को दिल नहीं करता। आओ बेटा यहाँ। सुफिया बेगम कमरे में डबल बेड के साथ रखे सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए बोली।
सकलन खामोशी से सोफे के कोने पे अटक गया था क्योंकि जहन अभी तक तस्वीरों में उलझा हुआ था। कैसे आना हुआ बेटा? कल से अहसन किसी बात पे बहुत परेशान था, कोई परेशानी में फंसा हुआ लग रहा था। हमारे लाख पूछने पे उसने बताना गवारा नहीं किया। आज ज़िबाई की खुशी की खातिर बाजार गया है, वरना मूड बहुत ऑफ था। ज़िबाइश के नाम पे सकलन को एक झटका लगा, यानी एहसन खान ने शादी भी कर ली और सकलन को बताना भी मुनासिब ना समझा। सकलन अब आंटी को क्या जवाब पेश करता? वो आंटी दरअसल मैं एहसन की शादी की मुबारकबाद देना चाहता था, बहुत मसरूफ़ था, कुछ दिन से इसे दे नहीं पाया। सकलन बहाना बनाते हुए मामले को दुरुस्त करने की कोशिश करने लगा। शादी पर एडवांस में क्यों मुबारक बेटा, तुम तो एहसन के मोहसिन हो, तुम्हारा ज़िक्र तो हर वक़्त इसके लबों पे रहता है। क्या तुम इसकी शादी पर नहीं आओगे? एहसन तो आज शादी की शॉपिंग करने गया है, अभी कुछ दिन लगेंगे शॉपिंग मुकम्मल होने में, फिर हम शादी की तारीख़ तय कर देंगे। सुफ़िया बेगम सकलैन से ख़फ़ी भरे लहजे में कहते हुए बोली, जी जी बेहतर, मैं तो ऐसे ही कहा था। सकलैन के चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था, यानी असम की शादी नहीं हुई थी। हाँ मेरे बच्चे, तुम तो शादी में लाजमी शिरकत करना, क्योंकि मेरा बच्चा इसके यादगार मौके पर अपने भाई की कमी को शदीद महसूस करेगा। वो आगे ही टूट कर बिखरा हुआ जवान भाई की मौत ने इसे दुनिया से बेजार कर दिया है। इस लम्हे में अगर तुम साथ नहीं होगे तो शायद ही वो संभल ना पाए। बात करते हुए आंसू पलकों की पार को बाहर निकल आए थे। सुफिया बेगम भीगे लहजे में सकलैन से इल्तिजा करते हुए बोली, सकलैन के लिए अच्छा मौका था सावल खान के बारे में पूछने का। आंटी, आपके बेटे की मौत कैसे वाक़ हुई थी? आई मीन रात को किस तरह हादसा पेश आया था? सकलैन ने झिझकते हुए सवाल पूछा, मामदा वो आंटी बुरा ही ना मान जाए। वो एक लंबी कहानी है मेरे बच्चे, मेरे दिल में अब दम नहीं। सुफिया बेगम ने एक लंबी आह भरते हुए अपनी शगस्ती का दर्द बयान किया। लेकिन तुम मेरे दूसरे बेटे हो, तुमसे क्या पर्दा? घर में किसी से बयान भी नहीं कर सकती अपना दर्द। एहसन खान मेरे सामने मजबूत बना फिरता है, लेकिन हकीकत यह कि भाई की जुदाई ने इसे अंदर से मात दे दी है। मेरा बेटा सामिल खान बहुत ही मासूम और बहुत ही मोहब्बत से भरपूर इंसान था, अपने काम से काम रखने वाला। वो एहसन खान से 1 साल छोटा था, मगर इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे मुबाजिल ट्विंस हो। जब 5 साल के थे तो कोई फ़र्क नहीं कर सकता कि इन दोनों में से खान कौन है और एहसन खान कौन है। मगर सामिल खान की नशोनुमा जल्दी हो रही थी। वो एहसन खान से कदामत में थोड़ा बड़ा लगने लगा। हाँ, इन दोनों की आँखों में काफ़ी तज़ाद था। सामिल खान की आँखें सियाह काली थी, जबकि एहसन खान की आँखें ग्रे थी। लेकिन ऐन जवानी में कदो-कामत का फ़र्क भी मिट गया। वो दोनों जब भी घर से निकलते तो इनको पहचानना मुश्किल हो जाता था। बहुत ही खूबसूरत दिलकश जवान थे दोनों, और सबसे अहम बात, दोनों में मोहब्बत भी मिसाली थी। इन दोनों में इस कदर मोहब्बत को देखकर कभी-कभी मेरा दिल घबराता था। मैं दोनों बेटों की दिन-रात बुलाए लेती थी। सुफ़िया बेगम गुफ्तगू में तवफ़ुफ़ करते हुए अपने आँसू साफ़ करने लगी, जो हमेशा अपने बेटों के ज़िक्र पर इनकी आँखों से निकल आते थे। सकलैन हैदर कुछ ना बोला, बस इन्हें देखता रहा। कितना दर्द छुपा हुआ के बैठे हुए हैं ना लोग अपने अंदर। सुफ़िया बेगम के झलकते आँसू बताए थे, मरने वाला इनके लिए क्या वक़्त रखता था। फिर जवानी की दहलीज पे गए तो दोनों की पसंद मुख्तलिफ साबित हुई। पढ़ाई के मामले में एहसन बिल्कुल शौक नहीं था साइंस पढ़ने का, इसे बिजनेस में दिलचस्पी थी, जबकि सावल को साइंस पढ़ने से काफ़ी हद तक लगाव था। सावल की बात करते हुए सुफिया बेगम का गला रोंद किया। सकलन बेसख्ता उठकर इनके पास गया और टेबल पर रखे जग से पानी निकाल कर इन्हें पेश किया। बेटा, तुम भी कह रहे होगे कि मैं अपने दुख लेकर बैठ गई हूँ? सुफिया बेगम दुखी लहजे में बोली, अरे नहीं आंटी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आप अपना बेटा ही समझकर अपना दुख बयान करें, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। सकलैन ने दिलचस्पी ज़ाहिर करते हुए इनके ख़दशात गलत साबित करते हुए बोला, बेटा मुझे बहुत शौक था अपने दोनों बेटों का ब्याह रचाऊँ, मगर दोनों निकम्मे थे। इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी कोई लड़की इनको पसंद नहीं आ रही थी। मैं हर वक़्त इन दोनों से लड़ती रहती थी। मगर फिर अचानक मास्टर डिग्री के सेकंड लास्ट सेमेस्टर में मेरे सावल की ज़िंदगी में एक लड़की आई। मेरा बेटा इस लड़की की दिलकशी में खो सा गया, और मैं खुशी से चहकने लगी कि जल्द से जल्द इस लड़की से मिलूँ जिससे मेरा बेटा अकीदत की हद तक मोहब्बत करता है। मैं और एहसन हर वक़्त इसे छेड़ते, हम दोनों ने इसे तंग कर के इसका जीना मुहाल कर दिया था। बात करते हुए सुफ़िया बेगम मोहब्बत से फीकी सी मुस्कुराई, मगर मेरे कमबख्त बेटे के नसीब में मोहब्बत नहीं थी। वो मोहब्बत मेरे बेटे को खा गई। इस नाकाम मोहब्बत ने मेरे जवान बेटे को मौत से दो चार कर दिया। मेरे बच्चे, बात करते हुए अचानक से सुफ़िया बेगम रोने लगी। रोने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि यास्मीन बेगम और निम्रा कमरे तक आई, मगर कमरे में किसी अजनबी को देखकर पलट कर चली गई।
एहसन ने अपनी माँ समझकर सूफिया बेगम के आंसू साफ किए। मेरा बेटा कहता था वो लड़की मेरे जिस्म में खून की तरह रच बस गई है अम्मीजान, इसकी मोहब्बत से रिहाई मुमकिन नहीं। मगर शायद इस लड़की का साथ और मोहब्बत मेरा नसीब नहीं। मैं अक्सर अपने बेटे को टूटता हुआ देखती तो रब ताला से इस लड़की का दिल अपने बेटे के लिए मोम होने की दुआ मांगती थी। मगर रब ताला को ना जाने क्यों मेरी दुआएं मंजूर नहीं हुई। शायद इस लड़की को कोई और बहुत शिद्दत से मांगता होगा, या शायद किसी और की तलब मेरे बेटे की तलब से ज़्यादा सच्ची होगी, क्योंकि मेरा बेटा और मैं दिन रात इस लड़की के साथ की दुआ मांगते थे। सूफिया बेगम ने बात इतने दिलगहरे लहजे में कही तो एक लम्हे को सकलन सहम ही गया कि कहीं ये सरीना इफ्तिखार की बात तो नहीं हो रही, क्योंकि इतना खुशनसीब कैसे हो सकता था। सकलन एक माँ ने अपने बेटे के लिए इसे रब ताला से मांगा हो और अल्लाह ताला फिर भी इस पर सकलन की लगन को फ़ौक़ियत दी हो। ये कैसे मुमकिन हो सकता था। सकलन की ये बात सोच सोच कर रोंगटे खड़े हो गए थे। आंटी, आपके बेटे की डेथ कैसी हुई? सकलन ने आखिरकार तजस्सुस से पूछा। इस लड़की की मोहब्बत ने निगल लिया मेरा बच्चा। इसकी तस्वीर दिखाई दिखाई थी हमें, लड़की वाजबी सी शक्ल की थी। एहसन खान तो अक्सर कहता था, सावन से तुम्हारी चाहत भी अजीब है, लड़की में आंखों की सिवा कुछ भी नहीं। सूफिया बेगम फिर से तफसील में चली जाती थी, क्योंकि बहुत अरसे बाद कोई गम सुनने वाला मिला था। और वो एहसन की बात में मुस्कुरा पर कहता, आंखों में तो डूब गया हूँ यारा, अब निकलना मुश्किल है। फिर पता नहीं इस लड़की ने क्या जवाब दिया, मेरा बेटा मुझसा गया। हर वक्त ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता। जब भी इस लड़की का पूछते तो झूठ से कहता, अम्मी जान दिल से उतर गई वो लड़की। हालांकि सामने दिखाई देता था पल पल मर रहा है इस लड़की की मोहब्बत में मेरा बच्चा। सूफिया बेगम के आंसू इतनी रवानी से बहते कि पूरा चेहरे पे जैसे किसी ने पानी का फव्वारा खोल दिया हो। बहुत दिनों बाद शायद उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली थी, वरना बच्चों को दुख ताज़ा ना हो इस डर से कभी जिक्र ही नहीं करती थी सूफिया बेगम। इस लड़की ने शायद मेरे बच्चे की मोहब्बत कबूल करने से इनकार कर दिया था। बहुत पाकीज़ा मोहब्बत करता था इस बदबख्त लड़की से मेरा बच्चा। लफ्ज़ बदबख्त पे सकलन का दिल दहलका रह गया था, क्योंकि हो सकता है वो लड़की सरीना हो। मैं इस लड़की को बहुत याद करती हूँ। बहुत खुश नसीब थी वो, जिसे मेरे बेटे ने दिलो जान से चाहा था। मगर अफसोस कि वो कदर ना कर सकी। इसने मेरे चाँद जैसे बेटे की सच्ची मोहब्बत को ठुकरा दिया। मुझे नहीं लगता वो कभी खुश रही होगी। खैर, मुझे इस कमबख्त लड़की से गिला है कि अगर वो मेरे बेटे से कोई रिश्ता रवा नहीं रखना चाहती थी तो मेरे बच्चे को धोखा धोखा देने की क्या ज़रूरत थी। एक बेहाना रात मेरे बच्चे को इस लड़की की तरफ से कॉल आई, या अल्लाह जाने किसी और की तरफ से, क्योंकि मुझे आज तक कोई नहीं बता रहा इस लड़की का क्या हुआ। कॉल आई कि वो लड़की किसी मुसीबत में है, मैं अनजान रही। हाय अफसोस, मुझे पता होता तो मैं कभी अपने बच्चे को जाने ना देती। सूफिया बेगम सीना पीटते हुए खुद को कोसते हुए जख्मी लहजे में बोली। एहसन को भी इसके जाने के बाद मालूम हुआ, और फिर हमें इसके शदीद हादसे की खबर मिली, और हादसा मेरे बच्चे की जान ले गया। इस लड़की की चाहत मेरा सब कुछ बहा कर ले गई। लेकिन एहसन मुझे इस लड़की को बददुआ नहीं देने देता। वो कहता है वो मेरे भाई की मोहब्बत थी। आप इसको बुरा कहती हैं तो इसे भी बुरा लगता होगा, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रोता है। कोई इस लड़की के पास जाकर इतना तो पूछे, जब मोहब्बत नहीं करनी थी तो किस निस्बत से इसे बुलाया, और क्या कमी थी मेरे इतने खूबरू और पुरकशिश बेटे में, क्यों इनकार कर दिया मेरे बेटे की मोहब्बत कबूल करने से। इस रात के बाद एहसन मुझे इस लड़की का जिक्र तक नहीं करने देता। हम बाहर के मुबारिक चले गए ताकि सावल की याद भुला सकूं, मगर वहाँ भी मेरा दिल नहीं लगा। बस इस सारे अरसे में एक अच्छी याद ज़िबाइश का मिलना है। ज़िबाइश के मिलने के बाद मैंने और मेरे बच्चों ने जीना सीखा है। एहसन की बीवी ज़िबाइश बहुत ही कोई नेक सीरत बच्ची है। इसके मिल जाने के बाद एहसन फिर से हंसना शुरू हुआ है। मगर मुझे ये दुख ता क़यामत रहेगा, एक लड़की का रूप लेकर मेरा बच्चा इस जहाँ पानी से कूच कर गया। मैं सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में मुब्तला रहूँगी। एक लड़की मोहब्बत मेरे बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुई। मैं किसी सूरत इस लड़की को माफ़ नहीं करूँगी। अगर मेरे बेटे को मारने में इसका ज़रा बराबर भी कोई कसूर हुआ, मेरा कलेजा फटा। सकलन, वो देखो तस्वीर, क्या मेरा बच्चा सच्ची मोहब्बत में ठुकराए जाने के काबिल था? वो लड़की बहुत पछताएगी मेरे बच्चे के लिए। हमने माफ़ किया। एहसन ने कोई केस नहीं करने दिया, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करने दी, मगर मैं इस लड़की को कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। मार दिया मेरा बच्चा। हो सकता है आंटी इस लड़की का भी कोई ज़्यादा नुकसान हुआ हो, वो लड़की भी तकलीफ़ों और रंजों में गिरी हो। सकलैन काफ़ी दिलगरीब लहजे में बोला, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। सूफिया बेगम ऊंची आवाज़ में रोते हुए दरवाजे में खड़े एहसन और हिना को परेशान व हैरान कर गई।
احسن کے کنگار بھر کے اپنی طرف متوجہ کرنے پر ثقلین نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا۔ احسن ثقلین کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ثقلین بھی صفیہ بیگم کے دکھ کے ساتھ ساتھ رو رہا تھا۔ احسن نے ثقلین کو گلے لگایا، دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ حنا خان ثقلین کو سلام کر کے پلٹنے ہی والی تھی جب ثقلین نے پکار لیا، حنا سسٹر ذرا رکے، ہو سکتا ہے آج کی محفل آپ کے کام کی ہو۔ حنا کو ثقلین کا روکنا عجیب تو لگا مگر چپ کر کے بیٹھ گئی، جبکہ صفیہ بیگم اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ سی آنسو صاف کرنے لگی۔ امی جان وہ مہمان ہیں، ان کو بخش دیں، ہر کسی کو اپنا دکھ نہ سنایا کریں۔ حنا صفیہ بیگم کے آنسو صاف کرتے خود بھی روتے ہوئے بولی، جبکہ احسن حیرت اور دکھ میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ جانتا تھا سرینا افتخار کو جو بددعائیں دی گئی ہیں، ثقلین کے دل پہ ان بددعاؤں نے کیا نقوش چھوڑے ہوں گے۔ احسن آج تو انکار نہ کرو، تم نے مجھ سے ہمیشہ چھپایا، آج تو بتا دو وہ لڑکی کون ہے۔ میں اسے کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دوں گی، صرف ایک بار اسے جا کر پوچھوں گی آخر اس کا وقت کو میرے بیٹے سے شادی نہیں کرنی تھی تو آدھی رات کو دھوکے سے کیوں بلوایا۔ امی جان کی اس بات پہ احسن اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ امی جان آپ اس طرح بات نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کی اس طرح بات چیت کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے وہ لڑکی بے گناہ ہو، بے قصور ہو، آپ کی بددعائیں سے خام خواہ جینے نہیں دے رہی ہو سکتا ہے وہ لڑکی اس سب سے انجان ہو۔ احسن خان نے اشاروں کنائیوں میں سرینا کی پارسائی کی گواہی دیتے ہوئے بولا، وہ لڑکی اتنی پارسا نہیں ہو سکتی میرے بچے، جس نے میرے بیٹے کو بے جان لاش بنا دیا۔ صفیہ بیگم پھر سے رونے لگی، جبکہ حنا خان کا سر شرم کے باعث جھکتا جا رہا تھا، کیونکہ ماروش کی ذات سے صرف حنا خان روشناس تھی، باقی کوئی نہیں، جبکہ سرینا کو سب جانتے تھے۔ حنا خان کے آنسو ندامت سے جاری ہو گئے تھے، وہ لڑکی بالکل معصوم ہے امی جان، وہ لڑکی ایسا گھٹیا کام کر ہی نہیں سکتی تھی، وہ نہیں کر سکتی تھی۔ حنا خان اونچی آواز میں رونے لگی تو سب حیران و پریشان ہو گئے۔ حنا خان کے اس طرح رونے سے سارے پریشان ہو گئے۔ زبائش، نمرہ اور یاسمین بیگم بھی اندر داخل ہو گئے تھے۔ ثقلین نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ احسن نے امی جان کے پاس سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ اپنا ہی بندہ ہے، صرف ثقلین جانتا تھا کہ حنا خان کیوں رو رہی ہے۔ میرا بچہ بہت خوبصورت ہے ثقلین، اتنا دلکش ہے، کوئی بھی اس پہ مر مٹے، مگر میرا بیٹا جس سے محبت کرتا تھا، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ احسن تو کبھی نہیں ملوائے گا، ثقلین تو کوئی سراغ نکال، میں ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس سے مل کر تسکین حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس لڑکی کو ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ صفیہ بیگم کی بے بسی سب کو رلا رہی تھی۔ میں ملوا سکتا ہوں آنٹی اس سے آپ کو، مگر میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا بیٹا کس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور کس نام سے رجسٹرڈ تھا۔ ثقلین نے ڈرمائے انداز میں جواب دیا، کیونکہ ایک پردہ اب بھی باقی تھا کہ وہ اگر ساول خان تھا تو اشمران خان کون تھا۔ میرا بیٹا شہر کی اکلوتی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، نام کا مت پوچھو، میں کہتی رہی وہ نام میرے بچے پہ منحوس ہے، جس دن سے میرا دیا گیا نام تبدیل کر کے وہ نام رکھا تھا، میرا بچہ کہیں ٹھیک نہیں رہا، مگر کسی ایک نے نہ سنی، سب کا یہی کہنا تھا دادا نے نام رکھا ہے لاڈ سے پوتے کا۔ میرے بیٹے کی زندگی پہ اس نام نے گہرا اثر چھوڑا ہے۔ میرے بیٹے کا نام میں نے اور اس کے بابا نے مل کر ساول خان رکھا تھا، مگر دادا جان نے تبدیل کر اشمران خان رکھ دیا۔ وہ دن بس میرا بچہ ٹھیک نہیں رہا، میں نے ان کے والد صاحب سے بہت کہا یہ نام ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ تقدیر لکھنے والی اللہ تعالیٰ ہے، یوں نام سے قسمت منسوب کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کر کے تم خود بھی گناہ گار ہو رہی ہو اور مجھے بھی کر رہی ہو، اور دوسرا وہ اپنے والد کا رکھا گیا نام کسی طور نہیں ٹال سکتے تھے۔ یوں میرے بیٹے کا نام اشمران خان ہی رہا، لیکن اس کے مرنے کے بعد میں نے عہد کیا تھا کہ اسے اس نام سے کبھی نہیں پکاروں گی، جب میرا بیٹا ہی نہیں رہا تو نام کیا لینا۔ اور ثقلین حیدر نے ایک گہری سانس لی تھی، آنسو پلکوں سے بہنے لگے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ثقلین پہ یہ راز کھولا تھا کہ وہ کتنا خوش نصیب تھا۔ ایک ماں کے مانگنے کے باوجود سرینا افتخار اس کے حصے میں آئی تھی، اور دوسرا اس نے دل سے دعا مانگی تھی کہ اشمران خان ایسا نہ ہو۔ نہ جانے کیوں ثقلین کا دل احسن کو اشمران خان ماننے پر تیار نہیں تھا۔ ثقلین جو اپنی ماں اور بہن کا ڈھسا ہوا تھا، مگر رب تعالیٰ ہر قدم پہ اس کے ساتھ تھا۔ مگر صفیہ بیگم کا غم بھی تو بہت بڑا تھا، وہ میرا جگر تھا ثقلین، میں تمہیں اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ ایک شکل کو چھوڑ کر تمہاری ساری عادتیں ساول خان جیسی ہیں، ہر کسی سے بے لوث محبت کرنا، بغیر کسی مطلب کے ہر کسی کی محبتیں لوٹانا، اور مجھے تمہاری ادا بہت پسند آئی۔ میری امی جان کی کچھ باتوں نے شاید تمہیں تکلیف پہنچائی ہو تو معذرت خواہ ہوں، مگر یہ نہیں جانتی تمہاری حقیقت، انجانے میں کچھ کر دیا ہو، معاف کر دینا یار، ایک بھائی کھو گیا دوسرا بھائی نہیں کھو سکتا، باپ کا لمس نہیں محسوس کرنے کو، باپ کا غم کیا کم تھا جو بھائی بھی چلا گیا۔ میں اندر سے بالکل خالی ہوں ثقلین، میرے دل میں اب کچھ نہیں رہا، بس ایک لڑکی نے اس کو دوبارہ سے دھڑکنا سکھا دیا ہے۔ احسن روتے ہوئے کمرے میں سب کو رلا رہا تھا۔
ज़िबाइश तो रवानी से हिचकियों से रो रही थी। एहसन ने जिस रंज से अल्फाज अदा किए थे, सकलन का दिल कटका रह गया था। सकलन एकदम उठकर एहसन को गले लगा गया, जबकि बाकी नफूस हैरत से थकने लगे। अब सकलन की क्या हकीकत है? सकलन बेटा, अब कुछ दिन मेरे बेटे के पास रुक जाओ, ये बहुत अकेला है। मैं रुक जाता आंटी, मगर वो भी अकेली है जिसे सारे ज़माने की बददुआएं समेटी हुई हैं। हालांकि खुद अनजान है, बेकसूर है, मगर कोई इसके दर्द को नहीं समझ सकता। अब की बार सकलैन की आंखों से निकलते आंसू सूफिया बेगम को बेचैन कर गए थे। कौन, किसकी बात कर रहे हो? सूफिया बेगम हैरानगी से बोली। वही जिसकी आपको तलाश है, वही बदबख्त लड़की जिसको आपने दुआ में भी मांगा, वही लड़की जिसको आप अभी बुरा भला कह रही थी। सकलैन, हिना खान और सूफिया बेगम दोनों के सर पे बम गिरा चुका था। क्या मतलब? किसकी बात कर रहे हैं आप? हिना खान को तो हौल ही आ रहे थे। सरीन इफ्तिखार की। सकलन ने बड़े आराम से हिना खान के पाँव तले ज़मीन खींच ली थी। हिना खान को लगा किसी ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली हो। कहा, क्या लगती है वो आपकी? हिना खान ने रोते हुए पूछा। बीवी है मेरी, सकलैन ने आंखें बंद करके जवाब दिया, क्योंकि वो सूफिया बेगम के तासुरात नहीं देखना चाहता था, जबकि सूफिया बेगम तो हैरत और दुख के तासुरात से मरने वाली हो गई थी। ये खबर इन पर क़यामत बनकर टूटी थी। इनका लाडला बेटा इस लड़की की मोहब्बत में जान दे चुका था और इसने शादी भी कर ली थी। हिना खान तो जैसे फ्रीसी हो गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी। हिना खान ने एकदम सकलन के पाँव पकड़ लिए। आप इनसे सिफारिश करें ना, मुझे माफ़ कर दें, मैं तो इनके पाँव भी पड़ चुकी हूँ, मगर उन्होंने धुतकार दिया। हिना खान के इस रवैये से सबके सब शिदर बने होंकों की तरह इसको देख रहे थे। सबको समझ नहीं आता हिना खान किस बात की माफ़ी मांग रही है, सिवाय सकलैन के। हिना खान, तुम कैसे जानती हो सरीना को? और जब तुम्हारा इससे ताल्लुक ही कोई नहीं तो माफ़ी किस बात की मांग रही हो? एहसन खान परेशान सा हिना खान की इस अजीब हरकत पे बोला। मुझे सरीना खान से माफ़ी चाहिए। समझ क्यों नहीं रहे हो आप लोग? हिना खान इतनी ज़ोर से चीखी कि कमरे में मौजूद सब नफूस का दिल दहल कर रह गया। सकलन भाई, वो आपसे बहुत प्यार करती होगी ना? आप आपकी बात भी मानती होगी ना? इन्हें इन्हें कहे ना कि मुझे माफ़ कर दे। हिना खान फ़कीराना अंदाज में रोते बिलखते हुए सबको शक में डालकर खुद मशहूस हो चुकी थी। क्यों रो रही हो मेरी जान, क्या हुआ है? सूफिया तलाल बेगम ने इसे बामुश्किल काबू करने की कोशिश की, मगर हिना खान की दिमागी हालत इस वक्त अबतर थी, वो किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। हिना खान पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। हिना खान इस वक्त से नावाकिफ थे कि सकरन इसकी हकीकत कैसे आशना है। ज़बाइश ने ज़बरदस्ती हिना खान को गले लगाया। क्या हुआ है ना, इस तरह क्यों रो रही हो? ज़बाइश हिना खान के आंसू साफ करते हुए नासमझी से खुद भी रो रही थी, जबकि यास्मीन और निमरा खामोशी तमाशाई बने हैरानगी से सब होता देख रहे थे। हिना, आप मुझे परेशान कर रही हैं। क्या गुनाह सर्द हुआ आपसे जो इतना तड़प रही हैं? किस बात की बेचैनी है आपको? एहसन खान जोर से धाड़ा। भाई भाई, आप सबकी मुजरिम सरीना इफ्तिखार नहीं, बल्कि मैं हूँ। मैं वो बदनसीब बहन हूँ जो अपने भाई की मौत का सबब बनी। सावल भाई की मौत का सबब सरीना इफ्तिखार नहीं, बल्कि मैं हूँ। वो खुद अनजान है इस रात क्या हुआ वो खुद नहीं जानती। हिना खान रोते हुए सिलकते हुए एक भयानक इंकशाफ कर रही थी और सूफिया बेगम का दिल बंद होता जा रहा था। क्या मतलब है हिना आपका? कैसी बातें कर रही हैं आप? सिपाही हिना को खबरदार करने की गर्ज से चिल्लाई। सिपाही से एहसन की हालत देखी नहीं जा रही थी, वो मुसलसल कँपा रहा था, हालांकि आधी सच से नावाकिफ था। मामा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सर्द हो गया था। मैं एक लड़की के बहकावे में आ गई थी। हिना खौफ और डर से थर थर काँप रही थी, जबकि एक लड़की के ज़िक्र पे सकलैन पहलू बदल कर रह गया। क्या कह रही हो आप? सूफिया बेगम को लगा अभी वो मर जाएंगी। इस रात सावल भाई की को जो कॉल आई थी वो मैंने की थी। अल्फाज थे कि धमाका सारे वजूद को लगा। इनके कानों में गर्म शीशा पिघल कर डाल दिया। हिना खान की ये बात कानों में इस कदर नागवार गुजरी थी कि एक सकलैन मुतमईन और पुरसुकून था, क्योंकि जो क़यामत इन सब पे अभी टूट रही थी वो क़यामत चंद दिन पहले सकलैन हैदर से सहेली थी। एहसन की आंखें दुख की शिद्दत से सुर्ख अंगारा हो गई थी। सूफिया बेगम तो अंदर जैसे ख़त्म ही हो गई थी। वो किसी बेगुनाह को कसूरवार गर्दा रही थी, मगर पसे पर्दा कहानी और थी। हिना खान को खुद को पीटते हुए हौले हौले माजी में गुजरी सारी कार्रवाई सुना रही थी और एहसन को लग रहा था इसका दिल अब धड़कना भूल गया जाएगा। आज इसका गम फिर से ताज़ा हो गया था। आज इसे फिर से सामल खान की हंसी याद आ रही थी, यानी इस घर की खुशियों का कातिल कोई और नहीं, इनकी अपनी बहन थी। एहसन का बस नहीं चढ़ता वो खुद को ख़त्म कर दे। हिना खान जैसे जैसे माजी की कार्रवाई सुनाती जाती थी, सूफिया बेगम का रंग फक होता जा रहा था। एहसन खान तो बिल्कुल ज़मीन पर ठा सा गया था।
احسن خان یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کسی اور کی خوشی کی خاطر کیسے اس کی بہن نے ثقلین کی محبت اور ثقلین کو تکلیف پہنچائی، اور سب سے اہم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے بھائی کی جان لے لی۔ زیبائش زمین پہ بیٹھے احسن خان کے پاس جا کر بالکل زمین پہ بیٹھ گئی۔ آپ کہتی ہیں نا میں پھٹا دل ہوں، مجھے محبت کرنا نہیں آتی، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ میں اپنی ذات سے بڑھ کر اپنی بہن کو چاہا اور بدلے میں بہن نے کیا کیا؟ اتنی نیچ حرکت کر کے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ احسن خان زیبائش کا ہاتھ پکڑے اپنے دکڑے سنا کر سب کو بے چین کر رہا تھا۔ اس سے غلطی ہو گئی تھی، وہ کہہ تو رہی ہے نا اس نے ساوروں کی خوشی کی خاطر ایسا کیا۔ شاطر تو وہ لڑکی تھی جس نے ہنا کو بہکایا، اس نے ہنا خان کے کندھے پہ گولی رکھ کر بندوق چلائی، اس کا غم بھی تو سمجھے نا۔ اسے کتنی تکلیف ہے اس بات کی، وہ اپنے بھائی کی موت کا سبب بنی، دوسرا بھائی بھی منہ پھیر لے گا تو مر جائے گی۔ زیبائش خود بھی رو رہی تھی مگر ہنا خان کی سائڈ لے کر احسن خان کو سمجھا بھی رہی تھی۔ احسن خان کو اچانک سے کچھ ہو گیا تھا، اسے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، شاید وہ یہ سچ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس کے بھائی کو موت کے منہ تک پہنچانے والی اس کی اپنی ماں جائی ہے۔ احسن کا وجود بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ صفیہ بیگم تو صدمے سے گنگ ہو گئی تھی، ان کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ ساری زندگی سرینا کو ناخوش رہنے کی دعائیں کرتی آئی تھی، اب اپنی بیٹی کا کیا دھرا سامنے آ رہا تھا تو ندامت شرمساری کا کچھ نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ احسن کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ زیبائش احسن کی غیر معمولی حرکت دیکھ کر زور سے چلائی۔ ثقلین جلدی سے احسن کی طرف لپکا، اس کو اٹھا کر بیڈ پہ سیدھا لٹایا۔ زیبائش اور ہنا خان کو اس کے پاؤں ملنے کا اشارہ کیا۔ کچھ نہیں ہوا احسن کو، سب بالکل پریشان ہو۔ اس اچانک صدمے نے احسن کے اعصاب پہ گہرا تاثر چھوڑا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ احسن ہمت کرو، میرا دکھ تو ابھی تم لوگوں نے سنا ہی نہیں، آپ لوگوں کو تو ذرا سی مسافت سے ہی دم تھوڑ گئے، ابھی تو سفر میں مزید مسافتیں ایسی آئیں گی کہ پاؤں چھلنی ہو جائیں گے، مگر زخمی پاؤں کے ساتھ تکلیف بھی جھیلنا پڑے گا۔ ہوش کرو احسن، تمہاری بہن نے جو انجانے میں ایسا کیا ہے، بے شک اس نے گناہ کیا ہے، قابل معافی نہیں، مگر بھائی کو مارنے کی نیت سے نہیں۔ میرا دکھ سنو تو دہل جاؤ۔ ثقلین کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے دو موٹے موٹے آنسو موتیوں کی طرح ثقلین کے رخسار سے پھسلے تھے۔ اس رات کے بعد آپ کی دنیا تباہ ہو گئی، آپ سب نے جان سے پیارا انسان کھو دیا۔ میں یہ مانتا ہوں جدائی کے لمحے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں اور آپ سب کا دکھ میں شاید ہی میں سمجھ سکوں، مگر اس رات کے بعد جو سرینا پہ گزری اس کا مداوع بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے میری دنیا میں بد کردار بازاری عورت اور نہ جانے کن کن خرافات سے نوازا کیا، اس کا تعلیمی کیریئر تباہ ہو گیا، اس کے سارے سپنے کرچی کرچی ہو گئے، سرینا نے اپنی زندگی حرام کر دی، اور اس ساری تکلیف کے دوران میں بار بار مرا ہوں، بس خالی روح قبض نہیں ہوئی۔ ثقلین سرینا کو پہ گزری قیامت بیان کرتا جا رہا تھا اور سارے لوگ سرینا کے ساتھ گزری قیامت پہ زور و قطار رو رہے تھے۔ سارے نفوس کی سمجھ نہیں آتا وہ سب اس وقت کس بات پر ماتم گنا ہے، سرینا کے تباہ ہونے پر، ساول کے مرنے پر، یا پھر ہنا خان کے گناہگار ہونے پر؟ اس سارے قصے میں سب سے زیادہ نقصان سرینا افتخار اور ساول خان کا ہوا تھا۔ ثقلین دھیرے سے گویا ہوا، ایک مر کے بھی ہماری نظروں میں مفرور مجرم رہا اور سرینا بے گناہ ہو کر سب کی نظروں میں فاسق رہی۔ اس سب میں سرینا نے اپنی ماں کو کھو دیا، اس رات کے واقعے نے سرینا کی ماں کی جان لے لی۔ سرینا نے خود کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی، وہ جتنی تڑپی ہے نا شاید ہی کوئی تڑپا ہو، ساول خان کو شاید مر کے بھی چین ملا ہو، مگر سرینا افتخار زندہ ہو کر مردہ میں شمار ہی رہی 4 سال۔ وہ تو اس نے اب جینا سیکھا ہے۔ ثقلین خود تو رو رہا تھا، ساتھ سب کو رونے پہ مجبور کر رہا تھا۔ احسن خان اب تھوڑا سنبھل گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری بہن کی اس غلطی پر، میں خود بھابھی سے معافی مانگوں گا، ہم میں اب مزید کسی کو کھونے کا دم نہیں ہے میرے بھائی۔ یاسمین بیگم اور نمرہ بھی رو رہی تھی، جبکہ زیبائش کبھی ہنا کو حوصلہ دیتی، کبھی احسن کو دلاسا دیتی اور کبھی صفیہ بیگم کو۔ ان سب میں وہ گھن چکر بن گئی تھی۔ معافی تم کیوں مانگو گے؟ معافی کا بوجھ پھر بھی میرے اوپر آئے گا، میں بھی اس معاملے میں سیاہ بخت ہوں۔ ثقلین نے گالوں سے آنسو کو بے دردی سے رگڑا۔ اس رات تم سب کو نصب و نابود کرنے والی تمہاری بہن ہے اور تم اس تکلیف سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہو تو سوچو، میں بھی تو زخمی ہوں، جذبات شکستہ ٹوٹے دل اور اپنوں کے بے رحم تعلق کے باوجود جی رہا ہوں نا۔ ثقلین بے انتہا ویرانی آنکھوں میں سجائے رنج و قہر میں ڈوبے لہجے سے بولا۔ کیا مطلب؟ احسن خان ناسمجھی سے بولا۔ تمہاری زندگی میں کڑواہٹ بھرنے والی اگر مجرم تمہاری بہن ہے تو سن لو احسن خان، یہ ساری کڑواہٹ بھرنے والی اور تم لوگوں کو برباد کرنے والی اہم کڑی میری بہن ہے، اور میرے دل سے یہ کسک نہیں جاتی کہ وہ میری لاڈلی بہن تھی۔ ثقلین کا اتنا کہنا ہنا خان کے ساتھ ساتھ کمرے میں موجود سارے نفوس کو گہرے صدمے اور حیرانی میں مبتلا کر گیا۔
क्या मतलब? हिना खान का वजूद तो जैसे किसी पहाड़ के नीचे आ गया था। एहसन को लगा वो किसी भारी ट्रक के नीचे आ गया हो, जिससे निकलना मुहाल हो, क्योंकि इस खबर पे तो सारा वजूद सुन्न हो गया था। हाँ, इस कहानी में जिस अजनबी लड़की का ज़िक्र हुआ, वो जो सामिल खान के इश्क में मुब्तला थी, जिसने सामिल खान को इंतकाम की भेंट चढ़ा दिया, वो किरदार और कोई नहीं, मेरी बहन मारविश हैदर का है। और मैं अपनी बहन की तरफ से माफ़ी भी नहीं माँगूँगा, क्योंकि मैं खुद इसे माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग कैसे माफ़ करेंगे? दूसरे लफ्ज़ों में वो आपके बेटे की कातिल है। सकलन हैदर की शर्मिंदगी और नदामत से एतराफ़ जुर्म सबको भतरका बना के अब कोई कुछ नहीं बोला था। किसी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। किस्मत में ऐसा होना था, मगर हिना खान और माविश दोनों बराबर की गुनहगार थी। मारविश हैदर ने अगर साजिश रचाई थी, तो इसको पाया तकमील तक हिना खान ने पहुँचाया था। मारविश ने अगर प्लान बना कर दिया था, तो हिना खान इसके पीछे भी हट सकती थी, मगर इसने भी इस सारे किस्से में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो एहसन खान को सदमा तो बहुत गहरा लगा था, धचका तो बहुत बुरा लगा था, मगर इसके ख्याल में हिना और मारविश दोनों बराबर की गुनहगार थी। अब एहसन को समझ आई कि बहरूपिया इमरान खान का क्या मकसद था, और बहुत अरसे पहले मार्केट में मारविश हैदर किसी और के धोखे में क्यों इसे यकटके देखे जा रही थी। एहसन खान ने सकलन को सुकून करने का इशारा किया, मगर बोल ना पाया। अल्फाज ख़त्म हो गए थे। कितनी ज़िल्लत आमेज़ बात थी कि एक लड़के के उसूल के लिए सकलन की बहन ने सावन की जान ले ली थी। सकलन जल्दी से उठा, क्योंकि अब इस कमरे में बैठे रहना सकलन हैदर को मुहाल लग रहा था। सकलन दरवाजे से निकलने लगा, फिर अचानक से पलट कर देखा। इतना सब कुछ करके खुश वो भी नहीं है। अपने अपने हिस्से की तकलीफ सबने गुजार दी है। इसके साथ जो कल हादसा पेश आया, इसके सारे कसबल निकाल दिए हैं इस हादसे ने। आप सब इसको कभी माफ़ करें ना करें, मैं कभी इल्तिजा भी नहीं करूँगा। आप जिस तरह से अपने बेटे की मौत का बदला लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर आंटी मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी बहन को बददुआ नहीं दीजिएगा। इसको बददुआ लगेगी तो समझे मेरी बर्बादी, और मैं अब जीना चाहता हूँ सरीना के साथ। मैं एक जवान बेटे की जली हुई माँ की बददुआ से डरता हूँ, क्योंकि आपकी बददुआओं ने मेरी सरीना को बेकसूर होते हुए खुश रहने नहीं दिया, तो सोचे कसूरवार का क्या हाल करेंगी। मेरी आपसे इल्तिजा है, बददुआ नहीं दीजिएगा। सकलन अपनी बात ख़त्म करके बेजान कदमों को घसीटता लंबे लंबे ढक भरता पीछे कमरे में गहरी खामोशी छोड़ गया। सरीना सुबह से तकरीबन 10 कॉल कर चुकी थी। सरीना रात इसने जैसे कांटों पे सोकर गुजारी थी। सकलन किस तकलीफ़ में होगा, समाविश का अल्लाह जाने क्या बना होगा, ये सोच सोच कर सरीना का दिल बैठा जा रहा था। मगर सकलन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर सरीना को परेशानी ने आ घेरा था। कहीं सकलन को कुछ हो ना गया हो। सकलन एक वीरान सी जगह पे आकर ज़मीन पे बैठ गया था। अब सकलन का दिल चाह रहा था वो सारी दुनिया से बेनुआस होकर बस किसी ऐसी जगह बसेरा कर ले जहाँ कोई गम ना हो। जानता था बहन तकलीफ़ है, मगर वो नहीं जो बाज़ आ रही थी। अब दर्द झेलना तो था। सकलन अपनी मस्ती में खोकर बैठा हुआ था, जब अचानक मोबाइल बजना स्टार्ट हुआ। वो खुदाया, इतनी मिस कॉल! सरीना बेचारी इधर अकेली। सकलन ने अपना माथा पीटते हुए झट से कॉल उठाई। खैरियत तो है? वहाँ पे जाके आबो हवा इतनी तब्दील हो गई कि आप मुझे भूल गए हैं। जानते भी हैं रात कैसे तड़प कर गुजारी है। इस तरह से माज़ी का बदला क्यों ले रहे तड़पा के? एक ही दफ़ा जान ले लेना, किस्सा ही तमाम हो जाए, जान छूट जाए आपकी। सरीना की दिलकश अफ़सरदा आवाज़ शिकवा करना लहजे में सकलन की समातों से टकराई, तो ऐसा एहसास हुआ कि रात के बाद तो सकलन ने सरीना से बात ही नहीं की। सॉरी ना दिल, परेशानी में था, समझ नहीं लगी। सकलैन बहुत ही धीमे लहजे में गलती तस्लीम करते हुए बोला, आप ऐसा ही करते हैं, दूर जाते हैं तो मेरी हैसियत कौड़ी की भी नहीं रहती आपकी नज़र में। आपकी परेशानी से फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा सांस घुटने लगा था। आप ज़रा देर और कॉल ना उठाते ना, तो फिर सारी ज़िंदगी मुझे पुकारते रहते। सरीना रोते हुए सकलैन को बेचैन कर रही थी। अच्छा ना रोए तो नहीं ना, मैं अब दूर रहूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं आप रो रो कर मेरी बेकरारियाँ बढ़ाएंगी। मैं आता हूँ अपने जिगर के पास, आपको दिल में समाने, बस ज़रा सा परेशानी थी, दिल तकलीफ़ में था, तो में था, नहीं समझ आई। अच्छी बीवी नहीं है, माफ़ कर देना। सकलैन सरीना को प्यार से मनाते हुए बोला, क्योंकि जितना इस लड़की ने दर्द सहा था, अब सिर्फ वो प्यार ही की हिस्सेदार थी, और सकलैन का वजूद सरीना पे निछावर होना खूब जानता था। मुझे आपका लम्स चाहिए, अभी और इसी वक्त। सरीना रोते हुए ज़िद्दी लहजे में बोली, आप तो मेरे दिल में हैं, मैं खुद अपने आपका इतना नहीं हूँ जितना आपका हूँ। आप तो धड़कन है ना धड़कती है, धड़कता धड़ आप तो धड़कन है ना धड़कती हैं तो जीता हूँ, नहीं धड़कती तो सांसें रुक जाती हैं।
मेरी तो ज़िंदगी आपकी सांसों की मरहून मिन्नत है। अब आप खफ़ा होकर मेरा दिल दुखाएँगी या प्यार से खुदाफ़िज़ बोलकर इंतज़ार करेंगी। सकलन सरीना को लफ्ज़ों के हेर-फेर में उलझाता मोहब्बत से बोला, आप अच्छे नहीं हैं। सरीना मुँह बनाकर बोली, आप बहुत अच्छी हैं ना जान। सकलन मखमूर लहजे में बोला, अच्छा सुने शाम तक आता हूँ। अच्छा तब तक इंतज़ार कीजिएगा। जी, सरीना ख़फ़ी से बोली, खुदाफ़िज़। सकलन फ़ोन बंद करने की गर्ज़ से बोला, अच्छा सुने। सरीना धीमे लहजे में बोली, जय जी कहिए ना दिल, आप सिर्फ मेरे हैं। सरीना ये बात कहकर कॉल काट चुकी थी। इस दिल को और कोई भाता ही कब है जिसकी मजाल हो कि मैं किसी और का हूँ। सकलन सरीना की तरफ मुतमईन होता घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा कि मालविश हैदर पे क्या बीत रही होगी।